So please, are you able to see my screen, Prabhuji, Mataji? Yes, Mataji. Okay, thank you, Prabhuji. So first of all, thank you all to give me this wonderful seva for especially for my purification. So, and please forgive me if I said something wrong or not like from the Shastra and all. So please forgive me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Udiraye Nashtiprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah. So today we'll start our Bhagavatam class. Adhuneha Mahabhaga Yathev Narakar Narha Nanograha Yatanamne Yat Tanme Vyakhyatumarhasi. Any Prabhuji? I will try, Mataji. Yes, Prabhuji. Adduneha Mahabhaga Yataiva Narakan Naraha Nanogra Yatanan Neyat Tanme Vyakyatum Arhasi. Hare Krishna. Yeah, thank you so much. Tanvini Mataji, you want to? Yeah, okay. Thank you, Mataji. Aduneha Mahabhaga Yatheva Narakan Nara Nanugrayatananeya Tanmeya Vyakatam Arhasi. Yeah, thank you, Mataji. Venkat Prabhu, synonyms. Can you read synonyms, Prabhuji? You may bring it little down, Mataji. Yes, Prabhuji. Yes, ma'am. So that they were indeed Rakan, all the hills, players are put Naraha, human beings, Ana, varieties of Gra, very good, Tana, Yatana, conditions of suffering, and Yat, not under that me to me, Vyakyatum Arthas is described. After should I read translation? Your voice is so feeble, Breaking, Prabhu. Prabhu. We hardly able Yeah. to hear. Yeah. Oh, sorry. Is it okay now, Prabhu? Yeah, now it is okay, Prabhu. Yeah. Hare Krishna Mataji. Should I read again? The translation you can read, Prabhu. Thank you, Prabhu. Oh, greatly fortunate and translation by Stephen Grace, Yeshi Bhakti Shila Prabhu. Jai Shila Prabhu. Oh, greatly fortunate and opulent Sukadev Goswami. Now, kindly tell me how human beings may be saved from having to enter hellish conditions in which they suffer terribly. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Vasant Prabhuji, Parpat, can Yes, you? Mataji. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. In the 26th chapter of the 5th canto, Sukadeva Goswami has explained that people who commit sinful acts are forced to enter hellish planets and suffer. Now Maharaja Parikshit, being a devotee, is concerned with how this can be stopped. A Vaishnava is para dukkha dukhi. In other words, he has no personal troubles, but he is very unhappy to see others in trouble. Prahlada Maharaj said, "My dear, my Lord,
I have no personal problems, for I have learned how to glorify your transcendental qualities and thus enter a trance of ecstasy. I do have a problem, however, for I am simply thinking of these rascals and fools who are busy with Maya Sukha, temporary happiness, without knowledge of devotion service unto you. This is the problem faced by a Vaishnava. Because a Vaishnava fully takes shelter of the Supreme Personality of Godhead, he personally has no problems. But because he is compassionate toward the fallen, conditioned souls, he is always thinking of plans to save them from their hellish life in this body and the next. Parikshit Maharaja therefore anxiously wanted to know from Sukadeva Goswami how humanity can be saved from gliding down to hell. Sukadeva Goswami had already explained how people enter hellish life, and he could also explain how they could be saved from it. Intelligent man must take advantage of these instructions. Unfortunately, however, the entire world is lacking Krishna consciousness, and therefore people are suffering from the grossest ignorance and do not even believe in a life after this one. To convince them of their next life is very difficult because they have become almost mad in their pursuit of material enjoyment. Nevertheless, our duty, the duty of all sane man, is to save them. Maharaja Parikshit is the representative of one who can save them. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare. So beautiful shloka, beautiful puppet. So जैसे sorry again Vasant Prabhuji going to speak in Hindi. So कैसे मैं हम देखते हैं समझ मैं कोशिश करता हूँ माता जी. हरी बोल प्रभु जी. तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड सबको पता होगा कि सुखदेव गोस्वामी जी उनको बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में सब बता के फिर वो परीक्षित महाराज ये पूछते हैं कि ये नरक के बारे में नहीं, लोग जो कर्म होते हैं वो मतलब क्या चीज फोर्स करती है उनको अच्छा या बुरा कर्म करने से. तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो 3 मोड्स ऑफ नेचर होता है वो उनको फोर्स करते हैं मतलब अच्छा या बुरा कर्म करने के लिए, क्योंकि हम सब की कभी कोई ना कोई किसी ना किसी मोड में हमेशा रहते हैं और उन्हीं के थ्रू मोड ऑफ गुडनेस में होंगे तो अच्छे कर्म होंगे. और तो उसी में फिर वो आगे एक्सप्लेन करते हैं. फिर वो पूछते हैं कि परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ठीक है आप मुझे ये बताइए कि नरक ये है कहाँ पे, क्या इसी भूदल पे है या फिर जैसे देश विदेश जैसे होते हैं यहीं पे है या फिर कहीं और है वो. तब सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि नरक एक्चुअली इस जो भूस्थल से बाहर है, जो हमारे उच्च वाले जो लोग हैं, एक मध्य में हम पृथ्वी लोक जिसके मृत्यु लोक भी बोलते हैं और नीचे जो है जो इसको अधम लोक भी बोलते हैं. तो उसमें सबसे लास्ट में आता है हमारा जैसे अताल पताल सुताल, लास्ट में हमारा पताल आता है. पताल से नीचे हमारा गर्भोदक्ष ओशियन है. उन दोनों के बीच में हमारा जो नरक आते हैं. तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई एक नहीं है, बहुत सारे नरक हैं, बहुत सारे मतलब. लेकिन भागवतम में सुखदेव गोस्वामी 28 नरकों का वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज को. उसमें वो ये बताते हैं कि क्योंकि परीक्षित महाराज उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी पाप से उनको क्या क्या सजाएं मिलती है और वो कौन कौन से नरक में जाते हैं. तब सुखदेव गोस्वामी जी उनको एक एक नरक के बारे में, उनमें से 28 नरक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और ये भी बताते हैं कि वो तो ये मैंने थोड़े से कुछ एक्सप्लेन किए लेकिन बहुत सारे नरक हैं. तो सबसे पहले तो हमको इतना समझना है कि नरक है क्या एक्चुअली. नर का बनाया हुआ या नर का किया हुआ ये होता है नरक. नर मतलब क्योंकि हम सब जानते हैं कि नरक में सिर्फ मनुष्य ही जा सकते हैं, ठीक है. कोई जानवर या किसी और को पाप नहीं लगता, सिर्फ हम जैसे मनुष्य को ही पाप लगता है जो हम अपने मनुष्य देह में है, नर देह में है, उनको ही
वही पाप उनको लगता है और वही लोग नरक में जाते हैं। तो ये तो हुआ नरक। हमें ये भी पता लग गया कि ये कहाँ पे स्थित है नरक। तो और 28 नरकों का। तो अभी ये सब सुनते सुनते जब उन्होंने वर्णन सुना परीक्षित महाराज ने, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़े भक्त हैं, वो उस नरक का वर्णन सुन के बहुत ही ज्यादा वो दुखी हो जाते हैं। तो वो परीक्षित महाराज से ये प्रश्न पूछते हैं कि अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे तो कोई नरक से बच ही नहीं सकता, है ना? हर इंसान कभी ना कभी कोई ना कोई उससे मतलब बुरा कर्म हो ही जाता है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि खाना खाते पीते झाड़ू लगाते कुछ ना कुछ कैसे भी कि जो 5 तरीके के शास्त्रों में बताए गए हैं कि जो पाप तो हमेशा होते हैं, अग्नि जलाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ऐसे करके 5 तो हमसे हर दिन जो पाप हो ही रहे हैं, तो हम चाहकर भी इनसे बच नहीं सकते। तो उसके लिए झूठ बोलना या फिर ये तो बड़े-बड़े की तो बात नहीं कर रहे हैं, शायद बड़े वालों से हम फिर भी बच सकते हैं। छोटे-छोटे पापों से जो हम आए दिन में करते हैं, है ना? उन पापों से मतलब बताते हैं कि घर में गेस्ट आए और हमने उनको बहुत अच्छे से वेलकम नहीं किया, हर टाइम तो हम अच्छे मूड में नहीं है, उसमें भी आपको एक पाप है। तो हर मतलब ये छोटे-छोटे हम दिन में पाप कर ही रहे हैं और इनसे तो हम बच नहीं सकते हैं। तो वो बहुत दुखी होके वो पूछते हैं कि आप इनका कुछ बताइए कुछ कि इनका कैसे निवारण हो सके इन पाप का। तब परीक्षित महाराज ये पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि इसका एक उपाय है, वो है कि अम, उसका प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करने से हम पापों को नष्ट कर सकते हैं। तो फिर उसमें ये भी बताया गया है कि कौन-सा पाप करने से क्या-क्या प्रायश्चित हमको करने चाहिए। तो फिर जब वो प्रायश्चित के लिए समझाते हैं तो अ तो फिर उनको ये परीक्षित महाराज ये सुनने के बाद कि प्रायश्चित और सुखदेव गोस्वामी जी ये भी बोलते हैं कि प्रायश्चित जो है वो हमको समय रहते करना है, इस देह में करना है, जल्दी से जल्दी करना है। जल्दी किस लिए उन्होंने बताया कि कोई विपत्ति ना आ जाए। बहुत सुंदर श्लोक है उसमें। कह रहे हैं कोई विपत्ति क्या है कि ये देह जब तक हमारी चल रही है, काम कर रही है ना? वृद्ध अवस्था में कहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से बुढ़ापे में करेंगे और ये सब नहीं, पता नहीं है उस टाइम हमारे हाथ-पैर, हमारी इंद्रियाँ ये सब काम कर पाए या नहीं कर पाए। तो जल्दी से जल्दी हमको कोई बीमारी लग गई या कुछ हो गया तो वो बोल रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करना और इसी देह में करना है। क्योंकि अगर ये देह हमारी छूट जाती है, तो हमको कई गुना अगली जो देह मिलेगी, उसमें कई गुना उसका वो मल्टीप्लाई हो जाती है हमारे उसका जो मतलब जो हमको भोगना होता है, ये जो पापों का जो फल है वो भोगने के लिए वो कई गुना हमारा बढ़ जाता है, तो इसी देह में उसको खत्म करना है। तो ये सब सुनने के बाद परीक्षित महाराज फिर सुखदेव गोस्वामी प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग के बारे में बताते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है कि हम भोगों में लिप्त रहते प्रवृत्त रहते हुए भगवान की भक्ति के बारे में। और एक होता है निवृत्ति मार्ग क्या होता है? वो होता है कि सब चीज़ों से निवृत्त होकर भगवान की मतलब चाहे वो ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होना है या किसी भी तरह से वो हर चीज़ों से अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके और भगवान की भक्ति करना और भगवान के धाम जाना। ये उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया इसके बारे में। तो फिर परीक्षित महाराज सोचते हैं कि ये कैसा पाप मतलब इन पापों को अगर हमारा ये पाप नष्ट भी हो जाते हैं तो क्या फायदा? ये तो वो बहुत सुंदर हाथी का एग्जाम्पल देखते हैं कि वो नहा के आता है और बाहर आके फिर से अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। तो हमने क्या किया पाप तो नष्ट हो गए हमारे लेकिन उसके करने की जो प्रवृत्ति है, वो तो नहीं गई हम लोगों की, वो तो बनी रही प्रवृत्ति तो वो कैसे नष्ट तो ये सुन के तो वो बड़े मतलब उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि कितना सुंदर प्रश्न किया और हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि परीक्षित महाराज इन सब चीजों से बहुत ऊपर थे बट इतने सुंदर-सुंदर जो प्रश्न किए वो हम सबके लिए उन्होंने प्रश्न किए, है ना? तो फिर वो ये पूछते हैं कि फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे वो पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए, है ना? तो फिर
वो एक बहुत सुंदर बताते हैं कि हमको भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए। तो जैसे अ, अजामिल को लेने के लिए यमदूत आते हैं, तो हम सबको पता है यमराज जो है वो क्या कहते हैं बहुत बड़े जज हैं, जस्टिस करने के लिए महाभागवत है, 12 महाजनों में से एक है। तो वो अपने यमदूतों को बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। तो उसमें एक तब वो बताते हैं कि हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम जाप करना चाहिए, उनकी कथाओं, उनकी लीलाओं का श्रवण और गायन करना चाहिए। फिर वो ये सब बताते हैं, बहुत सुंदर से वो इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अब हमको ये पहले ये समझते हैं कि पाप ये क्या मतलब रीजन क्या होता है, किस वजह से। तो एक भगवत गीता में बहुत ही सुंदर श्लोक है 16 पॉइंट आई थिंक 12 है, 16 चैप्टर में कहीं है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशिनम आत्मनः काम क्रोधा तथा लोभास तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। तो क्या होता है, ये तीन जो है वो नरक के द्वार हैं, ठीक है। वो कैसे हैं, जो काम है, काम से क्या उत्पन्न होता है, लोभ, है ना। हम काम क्या है कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और कुछ चीज मिल जाती है तो हमको और लोभ, और चाहिए वो चीज, और चाहिए, लोभ। और फिर वो चीज अगर नहीं मिलती है तो उससे हमको क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये तीन मेन गेटवे हैं, ये तीन मेन द्वार हैं हमारे नरक के, ठीक है। तो जैसे बताया। अच्छा, और हम ये देखते हैं कि हम किन किन तरीकों से जो है पाप करते हैं, क्या क्या मोड्स है, मतलब तो उसमें हमारे शास्त्र बताते हैं हम तीन तरीके से, मन से, वचन से और शरीर से। तो क्योंकि हम थोड़ा सा हम शायद लकी हैं, थोड़ा नहीं एक्चुअली हम ज्यादा ही लकी हैं कि हम जो कलयुग के अंदर है, हमको ये जो मन से जो हम पाप करते हैं उसको माफ कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आए हैं वचन और शरीर से। तो शरीर से भी हम शायद कम ही करते होंगे, किसी को मारना, और हम लोग मतलब शरीर से मारना वारना तो नहीं है, बट वचन से हम बहुत ज्यादा पाप कर देते हैं आए दिन में। अब वचन से पाप क्या हो रहा है, किसी की निंदा कर दी। जैसे रामायण के अंदर तो बताते हैं कि सबसे बड़ा जो पाप है वो यही है रामायण में, कि किसी की निंदा करना। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ा पाप तो यही कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। ऊपर से बातें सुनना, बोलना, भगवान का गायन, भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का, ये सब नहीं करना, उनमें रुचि नहीं होना। तो बहुत सारे मतलब हम ये पाप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर और देखा जाए तो जैसे राधा गोविंद, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज की क्लास में बहुत सुंदर बताया उन्होंने कि नरक तो जो है वो पृथ्वी पे भी है। कैसे कि दो दो नरक है पृथ्वी में, एक कहते हैं जेल और हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में तो कह रहे हैं कि वो यम का बड़े भाई हैं, क्योंकि यम तो सिर्फ यातनाएं देते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल है उसमें तो यातनाएं भी लेते हैं और धन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न ये उठता है, कई कई लोगों का ये मानना है कि सब नरक और स्वर्ग में कुछ नहीं है, जो भी है अच्छा और बुरा आपके कर्मों का फल यहीं पर है। तो क्या ऐसा है? हमारे शास्त्र कहते हैं नहीं, नरक भी है, स्वर्ग भी है, माना। और जो हमको इस मनुष्य देह में जो थोड़े से दुख हमको मिलते हैं, वो तो कहते हैं कि वो बहुत थोड़ा सा ट्रेलर है, मतलब बहुत उसका मतलब आपको ट्रेलर दिखाया गया कि ये उससे कई हजार गुना हमको नरक में भोगना पड़ेगा। तो सोचिए जरा, हम इस देह में रह के थोड़ा सा दुख आ गया तो कैसे बेचैन हो जाते हैं कि हाय ऐसा क्यों हो गया, वो मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे, ऐसा क्या किया था, है ना। उस टाइम पे हमको अपने अच्छे बुरे कर्म याद आते हैं। लेकिन ये हमको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे जो हमको कष्ट और दुख मिल रहे हैं वो सिर्फ ट्रेलर में देखने को हम लोगों को मिला है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि क्या हमको इसी देह में हम मतलब, क्योंकि वो तो आत्मा है, आत्मा को कैसे सजा मिल सकती है, कैसे कष्ट मिल सकता है। तो इसके लिए ऐसा है कि हमको जब नरक में ले जाया जाता है यमदूतों के द्वारा, और उसके रास्ते में भी बड़े सारे दुख होते हैं,
कहते पानी, खाना, पेड़ पौधे कुछ नहीं मिलता, ऊपर से धूप, नीचे रेत, सूखी जमीन, मतलब और कई जानवर आके, मतलब बहुत ही ज्यादा, वो सिर्फ वहां तक पहुंचने में है, और वहां नरक में पहुंचने के बाद जो स्वागत होता है वो तो अलग है। तो तो हम फिर मतलब ये सारे चीजें हैं हमको नरक के लिए, क्या क्या हमको इसमें जाना है, और कैसे हमको, तो उसके लिए ये है कि हमको एक यातना शरीर मिलता है, जहाँ पे हमको, क्योंकि आत्मा को तो कैसे दे सकते हैं ना वो कोई भी सजा, तो ये जो यातना शरीर होता है, कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे अपने भौतिक शरीर है वैसे ही यातना शरीर होगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो दुख दिया जाएगा वो यातना शरीर यातना देने के लिए ही दिया गया है, और वो कहते हैं कि उसमें जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, दर्द होता है, वो कई हजार गुना, जैसे कि हमारी उंगली कट जाती है या जल जाती है, जितना दर्द होता है उससे कई हजार गुना दर्द हमको यातना शरीर में होता है, इसीलिए हमको वो शरीर दिया जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे यहीं पे सबको अपना अच्छा बुरा कर्म, हमें किसने देखा है नरक स्वर्ग और ये सब चीजों पे नहीं जाना, अपने कर्मों को हमको, अपने जो कर्म है उनको, जैसे कि हम अपने घर में धन कहते हैं ना, संभाल के रखते हैं कि कोई चोरी ना कर ले, है ना, ऐसे हमको अपने कर्मों को संभालना है, हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ मेरा कर्म को गलत गलत हो रहा है, कहाँ कैसे है ना, इन चीजों पे हमेशा हमको फोकस करना है, ध्यान रखना है। तो हमको फिर वो उनके सबके बारे में बताते हैं। तो जब यमराज जी, जो 12 महाजनों में से एक, बहुत सुंदर ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवान के नाम का जो ज्ञान है वो अपने हम सबको ये अजामिल की स्टोरी पता है, तो हम बहुत ज्यादा उसमें अभी नहीं जाएंगे। अजामिल की स्टोरी में वो उनको बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं भगवान के नाम का, और उसमें एक बहुत सुंदर बात वो बोलते हैं, जो श्लोक है 6, मेरे को नंबर शायद याद है क्या, 6.2.18 या 12 में है, कि जिसमें वो ये बोलते हैं कि एक्चुअली भगवान का नाम, एक बार नाम लेने से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान के। तो एक्चुअली भगवान का नाम नहीं, उसके नामाभास, नामाभास मतलब जैसे कि नामाभास क्या होता है, जैसे कि सूरज अभी निकला नहीं है लेकिन उसकी लाइट आनी शुरू हो जाती है ना, सूरज निकला नहीं है, बस लाइट दिख रही है उसकी, और हमने देखा है ना सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता है, उसमें ऐसा ही होता है कि सूरज से पहले उसकी लाइट आनी शुरू हो जाती है। यही चीज भगवान के नामाभास के अंदर है, उस नामाभास के द्वारा ही हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। वो तो कहते हैं कि ये बोलना भी सही नहीं है कि भगवान के नाम से, भगवान के नामाभास से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर क्यों हम इतने सारे नाम जाप कर रहे हैं, क्यों हमें बोला गया है कि 16 राउंड चैंट करो, ये करो, वो करो, तो इसीलिए कि पाप तो हमारे उसी दिन सारे नष्ट हो गए हैं जिस दिन हमने भगवान का नाम लिया। कहते हैं ना कि अ, अ, जब हम भक्ति में नहीं आते, जब तक हम भक्ति में नहीं आते तब तक हमारे ऊपर अगर कोई कष्ट आते तो हमारे वो कर्मों से आए हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्जी है, भगवान की वजह से वो जो है अ, हमारे ऊपर वो कष्ट आ रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना है, उन कष्टों को, उन दुखों को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी है। ये भगवान की मर्जी, इसी तरीके से वो अपनी मर्जी जो है वो हमको बरसाते हैं। तो अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि भाई क्यों हम इतने नाम जाप के लिए बुलाए, क्योंकि पाप तो नष्ट हो गए, पापों को नष्ट करने के लिए भी हम नाम जाप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले दिन जब हमने लिया होगा तभी हम सबके पाप नष्ट हो चुके हैं। जो हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो है वो नाम जाप कर रहे हैं। ये चीज हमको हमेशा याद रखना है कि क्या फायदा, मतलब इतना सब करने के लिए, क्योंकि अब हमको चाहिए भगवान का प्रेम चाहिए, ठीक है। अभी अभी ये देखते हैं कि कर्मों का रिजल्ट है ना, वो कब आना है,
बहुत तरीके के कर्म हैं जो हमने पढ़े हैं, जो फलीभूत हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हैं। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी देते हैं महाराज की, जैसे कि हम फोन मोबाइल मतलब कोई आईएसडी कॉल्स करते हैं और ऐसा बोलते हैं, अरे रख दो, बहुत देर हो गई, ये बिल आ रहा होगा, रख दो फोन। और इनफैक्ट हम लोगों के लोकल में भी जब पहले के टाइम पे बड़े बिल आते थे तो ऐसा बोला जाता था पेरेंट्स की कि फोन रखो, बहुत लंबा हो गया है, बिल आएगा। अरे वो बिल हमको अभी दिख नहीं रहा है, वो बिल आएगा जब महीना खत्म हो जाएगा और एक एक डिटेल आएगी उसके अंदर, आपने कितने मिनट, सेकंड, कितने पल्स आपने बात की, सारी डिटेल्स उसके अंदर आएगी। तो हमारे कर्मों का ऐसा ही है, हम इस देह में जो भी कर्म कर रहे हैं, बट इसका जो रिजल्ट है वो हमारे मरने के बाद आता है, बस यही होगा, है ना? लेकिन उसमें से भी कुछ है कि जो पहले के कर्म होंगे या कुछ ऐसे पाप होंगे जिनका फल उसी टाइम पे भी हमको मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो है वो हमारे को इस देह के बाद, मृत्यु के बाद हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? तो और प्रभुपाद से एक बार किसी क्रिश्चियन के मतलब प्रोफेसर से एक बार कुछ डिस्कशन हो रहा था, तो वो बोलते हैं कि हम सिन को तब मानते हैं जब उसका कोई प्रूफ होता है ना? इनफैक्ट हमारे जो हम कोर्ट में भी जाते हैं, तब भी वो किसी ने अगर किसी का मर्डर किया है या कुछ किया है, तो जब तक उनके पास कोई गवाह नहीं है, तब तक वो उसको नहीं मानते, है ना? उसको हम सजा नहीं दे सकते। तो आपके यहाँ कैसा है? तो उनको भागवतम का एक श्लोका बताना चाहिए 6.1.42, उसके अंदर हमारे 12 साक्षी हैं, जिसमें हमारे भागवत में बताया गया 12 साक्षी। क्या-क्या है वो 12 साक्षी? सन, फायर, स्काई, एयर, डेमिगॉड्स, मून, इवनिंग, डे, नाइट, डायरेक्शंस, वाटर, लैंड, सुपर सोल। ये जो है 12 साक्षी हैं। जब हमको यमराज के कोर्ट में लेके जाया जाता है तो ये 12 साक्षी होते हैं, और सोचा जाए तो हो सकता है इनमें से कुछ फेल भी हो जाए, है ना? कुछ झूठे भी बोल दे या कुछ चेंज कर ले, क्या ऐसा? लेकिन जो परमात्मा हम सबके हृदय में बैठे हैं, साक्षात भगवान परमात्मा के रूप में, है ना? क्या वो सबसे बड़े साक्षी हैं। वो उनसे बड़ा तो कोई साक्षी हो ही नहीं सकता, है ना? तो वो जब खुद बैठ के एक-एक चीज़ का, हमारे एक-एक कर्म का वो ले रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात है ना? और जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो देह हमें मिली है ना, मनुष्य देह, है ना? इसी में कर लो और अभी कर लो, क्योंकि ये भी नहीं पता कि कब हमारी मृत्यु आ जाए, वो भी नहीं पता। तो जितना जल्दी इसको, इन पापों को खत्म, नष्ट कर लो, इसकी प्रवृत्ति को खत्म कर लो, जितना जल्दी उतना हम सबके लिए अच्छा है। क्योंकि हमारा एक-एक कर्म हमारी नई, हम यहाँ कर्म कर रहे हैं और अगले जन्म में हमारी एक नई बॉडी तैयार हो रही है। ये चीज़ हमको सोचनी है ना? एक, क्योंकि वही होने वाला है कि हम जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे ही हमको नेक्स्ट बॉडी मिलने वाली है। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? इस बॉडी में रहते ही जो कर सकते हो वो कर लो जल्दी से जल्दी। क्योंकि ये बॉडी छूटने के बाद हमें नहीं पता हम कौन-सी योनि में कैसे चले जाएँ। फिर तो बहुत मुश्किल है। इस 84 लाख कर्म ये योनियों से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। तो ये हमने थोड़ा-सा इसके बारे में सुना और नामाभास के बारे में भी समझा कि क्या होते हैं, है ना? यमराज जी, और हमको पता होना चाहिए यमराज जो है वो अम, अ, पितृलोक हम सबको पता होगा। पितृलोक के जो राजा हैं वो है यमराज। तो हम सबको पहले जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, उनको सबसे पहले वहीं ले जाया जाता है यमदूतों के द्वारा। वहाँ पे उनका पूरा फिर लेखा-जोखा, जो चित्रगुप्त हैं उनके वो सबका लेखा-जोखा रखते हैं और फिर बताया जाता है कि कब किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कौन क्या कहाँ जाएगा, है ना? आगे प्रमोट होगा या नीचे नरक मतलब नीचे के लोकों में जाएगा। तो वो सब वहाँ पे जाके यमराज जी उसका फैसला सुनाते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम जज हैं, जो भगवान ने उनको वो पोज़ीशन दी गई है। तो उसके बाद फिर एक और श्लोका जो परीक्षित महाराज बहुत सुंदर भी पूछते हैं, अगर ऐसा है तो फिर क्यों बड़े-बड़े भागवत जो बोलते हैं कि फिर ठीक है ये यज्ञ करो, ये दान करो और ऐसे करो अपने पापों को नष्ट करने के लिए, फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं?
तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं वो एक्चुअली उन महाभागवत के लिए उन्होंने उन लोगों के लिए यूज किया है जो कर्मकांडी है ना। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के नाम में विश्वास नहीं है ना, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं कि ये कर लो तो ये ऐसा हो जाएगा, वो कर लो। लेकिन यहाँ पे तो जो 12 महाजन है, हमको उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना है। यमराज जी 12 महाजनों में से एक हैं, जो कि अपने दूतों को ये बोल रहे हैं कि भगवान के नाम से, तो हमको इस चीज पे कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है, कि क्या ऐसा होता है, क्या ये बहुत ज्यादा एग्जीगरेट करके बताया गया हमारे शास्त्रों में? नहीं, ये भी अपराध है ना। तो इन चीजों को हमको मतलब नहीं सोचना, भगवान के नाम पे विश्वास करना है और हमेशा भगवान के नाम का वो करना है। और इसमें एक हम देखा जाए तो एक बहुत वो है, एक इनर नेट और इंटरनेट हम सबने सुना होगा। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के थ्रू हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी लोग से हम कनेक्ट हो पाते हैं ना। लेकिन क्या होता है, हम लोगों से तो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो हमको क्या करना है? इनर नेट। जैसे मैं वसंत प्रभु जी का बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ, जो हम मेरे मेरे प्रभु को हमेशा ये बात बोलते थे कि हमेशा एक सेल्फ टॉक करो। मॉर्निंग में 5 मिनट्स उठ के सब हमेशा अपने लिए सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है। माता जी, अपने से बात करिए, पूछिए। तो वो वही, ये इनर नेट वही है कि हमको देखना है हम हमको क्यों इनर नेट मतलब अपने आप से कनेक्ट करना, मतलब मैं हूँ कौन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं हूँ कौन, है ना। और कहते हैं ना, जैसे जो बद्ध जीव होते हैं वो तो अपने आप को शरीर मान के अपने शरीर के लिए कर्म करते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो तो कहते हैं हाँ, शरीर जो दिया गया है वो भगवान की भक्ति के लिए दिया गया है ना। और मुझे इस शरीर के थ्रू भगवान की भक्ति, मैं हूं तो आत्मा, लेकिन मुझे ये शरीर को अपनी भक्ति के लिए यूज करना है ना। मैं प्रसाद खा रहा हूँ, तो जल्दी से वो प्रसाद खा के मैं शुद्ध हूँ और शुद्ध होके मैं भगवान के भगवत धाम जाऊं। तो योगी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। तो ये इनर नेट बहुत जरूरी है हम सबके लिए, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत यूजफुल है। मैं ट्राई भी कर रही हूँ इस चीज को, इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ। तो और ये वसंत प्रभु ने ही मुझे सिखाया है ये इंटरनेट के लिए। तो अब हम ये देखते हैं कि परीक्षित महाराज, हमने नाम जब सुन लिया, भगवान की कथा सुन ली, तो ऐसा क्यों, मतलब परीक्षित महाराज को ऐसा श्राप दिया गया, इतने व्याकुल हो गए थे? और मतलब ये सब हमने सब, आप लोगों ने सबने, आप सब बहुत बहुत शुद्ध भक्त है भगवान के, सबको सब कुछ पता है। लेकिन एक एक चीज सिर्फ मैं मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए बता रही हूँ कि क्योंकि हमको एक चीज सोचनी है कि जब तक हम भगवान के लिए आतुर नहीं होंगे ना, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। ये गारंटी है। हमारे ऊपर दुख आएंगे ही आएंगे। वो कुंती महारानी का श्लोक जो है, वो वो सच सच है, वो ऐसा होगा ही। वो इतने, अभी हम में से कोई इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन वो हर भक्त के लाइफ में वो टाइम आएगा, अगर हमको शुद्ध भक्ति चाहिए, वहां तक पहुंचना है। क्योंकि जब तक वो दुख नहीं आएगा, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो आप सोचिए कि परीक्षित महाराज की 35 इयर्स एज थी। वो इसलिए थी कि जब वो ब्रह्मास्त्र से उन्होंने, भगवान ने उनको बचा लिया, लेकिन उससे उनकी जो उम्र है वो छोटी हो गई, उसको नहीं बचा पाए। तो इसकी वजह से फिर उन्होंने ये सब, भगवान ने इनकी लीला रची कि वहां पे हुआ जिससे कि भागवत प्रकट हो, है ना। और कितने सुंदर तरीके से वो प्रश्न कर रहे हैं, और परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जो है उनके हमको आंसर्स दे रहे हैं, है ना। कहते हैं कि जब भागवत, कोई भक्त, भगवान का सच शुद्ध भक्त जब कथा सुनाता है, तो कहते हैं कि पोथी नहीं बोलती, है ना। जब भगवान का शुद्ध भक्त कथा सुनाता है तो पोथी नहीं बोलती, उसकी उसकी भक्ति बोलती है ना। तो यहाँ पे देखिए कि महाभागवत के मुख से परीक्षित महाराज जो है कथा सुन रहे हैं, और उनको भगवान भगवत धाम जाने के लिए वो आतुरता हो गई कि अब मेरे पास इतने दिन है और मुझे भगवान के पास जाना है। एक बहुत सुंदर वृंदावन में कोई
हमने उनके मुख से, श्री मुख से ये सुना था कि ये सच्ची घटना है कि एक बार एक बहुत वृद्ध जो भक्त थे भगवान के आश्रम में, पूरी उन्होंने अपनी लाइफ उस आश्रम में दे दी सेवा में। बट जब वो वृद्ध हो गए तो वो सेवा नहीं कर पा रहे थे और बस वो ज़्यादा कुछ, तो वहाँ के जो हेड थे उस आश्रम के जो थे, उन्होंने उनको बोला कि अरे तुम यहाँ जाओ, अब तुम किसी काम के नहीं हो, बस खाते हो, कोई इसको क्या समझ रखा है तुमने, और तुम बस खाते हो, सोते हो और कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो वो यहाँ से उनको उस आश्रम से, उस वृद्ध भक्त को वहाँ से निकाल देते हैं। तो वो एक दूसरे भक्त उनसे जाके पूछते हैं कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी, अब तो वो वृद्ध हो गए, भई नहीं उनसे सेवा हो पा रही, तो क्या हमारा आश्रम छोटा रह गया एक भक्त को रखने के लिए? तो वो बड़े दुखी होके वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, अब उसका जाने का टाइम आ गया, क्योंकि वृद्धावस्था आ गई, जाने का टाइम आ गया और अब वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीने लग गया कि हाँ ठीक है, खाना मिल रहा है, सब है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, भक्ति कर रहा हूँ जितना मेरे से हो रहा है, हैं? तो ऐसे से हमको भगवान नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। जब तक भगवान को पाने के लिए आतुरता नहीं होगी ना हमारे अंदर, तो वो कह रहे हैं कि अब वो जाएगा, अब उसको ये फील होगा बाहर जाके कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब तो भगवान ही है मेरा आश्रय। अब वो फुल सरेंडर होगा भगवान के ऊपर, अब वो भगवत धाम गारंटी है उसका जाना। तो हमको अपनी भक्ति में जो है वो उतनी ही आतुरता लानी है, उतनी ही एक्साइटमेंट लानी है। अभी पंजाबी बाग टेम्पल में सची हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज आए थे। उन्होंने बहुत सुंदर उनका लेक्चर में बताया उन्होंने 10 80 10 10 80 10 का उन्होंने एक रूल बताया। इस दुनिया में जो स्टार्टिंग वाले 10% और एंड वाले जो 10% है, दो ही लोग खुश हैं। तो स्टार्टिंग वाले 10 जो % लोग हैं वो है फूल्स, और जो बाद की जो 10% है वो है भगवान के शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त हैं वो तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे ही, है ना? और जो फूल्स हैं वो ये सोचते हैं वाओ, खा रहा पी रहा ऐश कर रहा हूँ, बस यही लाइफ है, इसीलिए हमको मनुष्य जीवन दिया गया है, खाओ पियो ऐश करो। वो ऐसा सोच के भी, वो भी जो टेम्परेरी सुख है, पर्पट में भी हमने पढ़ा था कि वो माया सुख जो टेम्परेरी है, वो उसमें सुख में को देख के वो हमेशा खुश रहते हैं। और जो बीच के 80% जो हम जैसे लोग हैं, वो अटके रहते हैं। मतलब उनको माया भी नहीं चाहिए, मतलब माया भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, भक्ति भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो हम जैसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बताया। और उस भक्ति की, क्योंकि अभी हमको भगवान के नाम लीलाओं में इनमें बड़ी रुचि आ गई, तो हम ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाले 10% में आ गए जो सिर्फ और सिर्फ माया में डूबे हुए हैं लोग। अब हम वहां पे भी नहीं जा सकते। तो हमको क्या करना है, उन्होंने बताया कि हमको शुद्ध भक्त की ओर जाना है, वहीं हम जा सकते हैं। तो अब उसको जाने के लिए हमको बस यही करना है कि यही करना है हमको कि बहुत ज्यादा आतुर होना है भगवान की भक्ति के लिए, एक्साइटमेंट लानी है अपनी भक्ति के अंदर, कि जैसे कि हम शुद्ध भक्ति के तरफ आगे बढ़े, उन 10% लोगों की तरफ आगे बढ़े। बहुत सुंदर उन्होंने ये बताया। और हमने ये भी देखा है कि कहते हैं ना, भागवत जो है, भागवत पढ़ने से इंसान जो मनुष्य है वो अमर हो जाता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि वो अमर कैसे होता है ना? क्यों, क्या इसका मतलब हमने इतनी बार भागवत सुन ली तो अब हम मरेंगे नहीं? अरे इतने लोगों ने सुना है, वो तो उन्होंने तो अपनी देह त्याग किया है, देह छोड़ी ही है, तो हम भी जाएंगे ऐसे। उसका मतलब यही है कि हमारी जो आत्मा है वो अमर होगी, भगवान के धाम वो आत्मा जाएगी और उसके बाद वो वापस नहीं आएगी, किसी और देह में वो नहीं आएगी वो आत्मा। तो हमको बस ऐसे ही अपने कर्मों को संभालते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, अपने पापों और पापों की प्रवृत्ति को नष्ट करते हुए, ऐसे ही भगवान के भक्ति करनी है, भगवान का नाम जाप करना है। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, क्या बात है माता जी, क्या बात है। धन्यवाद, हरि हरि बहुत बहुत अच्छा प्रवचन दिया माता जी। हरि हम सब आपके आभारी है। हरि बोल प्रभु, हरि अब मैं बोल प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। अब मैं इन वेंकट प्रभु को बुलाने का, उनके सुझाव और टिप्पणी के लिए। हरि हरि प्रभु, इतना हिंदी।
I didn't expect, Prabhu. So surprising, Prabhu. Not expected at all. Yes, Mataji, seriously. Hare Krishna Mataji. Very well. Hare Krishna, Dhanat Pranam, Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Thank you, Prabhu. I could not. Sorry, Prabhu. I was late for today, so I could not hear your songs. But it was on my background. I could not concentrate, but I was coming here and there. Very nice, Prabhu. Thank you for remembering us about the about the Vaishnava prayers. I will read that, Prabhu, again. Thank you, Prabhu. And really, Prabhu, your Hindi is very good, Prabhu. Thank you, Prabhu. माताजी, कमिंग बैक टू माताजी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी। आपने बहुत अच्छा बताया माताजी, ये नरक के बारे में आपने जो याद दिलाया, या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इधर भी नरक है और आगे भी बहुत सारा नरक है बोल के आपने उसको विस्तार किया, वो भी अच्छा है माताजी। थैंक यू फॉर दैट माताजी। बहुत दिन के बाद आपका क्लास सुन रहा हूँ, रियली थैंक्स लॉट माताजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी। या धन्यवाद प्रभु। अब मैं तंदविनी माता जी को बुलाने का उनके सुगज और टिप्पणी के लिए। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. Sorry. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. And Pranam. Thank you so much, Vasant Prabhuji, for the beautiful Jay and Nilo. Actually, when I was listening to when you were singing the bhajan, I was thinking this bhajan is so suited for your voice. I mean, obviously all the others, but then this particular bhajan, the tempo that you were singing in and everything, you were so connected to it. It just because when the singer is connected to that kirtan or to that bhajan, then you can feel it. So I just felt that connection, and it was very nicely sung, and then only it stirs your heart because the connection is there. So thank you very much for giving that connection, Prabhuji. So it was very nice, a melodious kirtan, and made my morning. And actually, I would like to thank Sadhu Sevan Prabhuji because he gave me the morning alarm, and I was able to connect. Although Vasant Prabhu always gives me the morning alarm, but I'm not able to connect. But this time, Sadhu Sevan Prabhuji just gave right in time for me to connect. So thank you very much. Coming to Ati Sundari Mataji's class, what a beautiful class. Very simple, as always. Her classes are like very simple, to the point. She doesn't go here and there. I mean, she just sticks to what is to be, to the content, and the examples were very beautiful. I would just like to say that when she started with the three modes it just reminded me of this story which is there, that in a jungle, when we enter this is a common anecdote that is taken by the acharyas. In a jungle, when a man enters, this jungle is the material world, bhautik sansar, as they say. So when a man enters in this, like we enter in this, so there are three dacoits, teen lutere hain. So the first dacoit that the man encounters, he beats him up like anything. He beats him to the pulp, and he leaves him there to die. So the first one is the mode of ignorance, that gets beaten, that beats us so much, like when we have addictions to alcohol or any of the addictions that we are, or cigarette smoking or anything, we are not able to do anything. We become like that only. So this is what happens when mode of ignorance just beats us and leaves us to die. The second dacoit that comes, the second dacoit comes and sees the person lying over there and is already beaten, but doesn't do anything to help,
but whatever the possessions the person has takes it away. So the second dacoit is the mode of passion, because this passion, what it does is that it ignites this thing in us ki aur kamana hai, we need to be more competitive. We are in this material world. When we go to the office, oh, we have to climb up the ladder, or probably, and we show this in the devotee world also, the same thing that we come up with. So this one, Hare Krishna Venkat Prabhuji. So this is the second dacoit that leaves us, that takes away all our possessions and leaves us to, again, it is leaving us to die. Now, when the person attempts to get up and go a little further, so this meets the third dacoit, who tells him that sit over here. This is a beautiful lake, and take some rest. So this is the third one, the mode of goodness. It shows him what is beautiful inside the jungle, doesn't show him the path outside of this jungle. So this is the mode of goodness, that Satogun, that does not show us outside, but shows us, oh, we are very happy. That's what people say, no, that we are very happy with whatever life has given us. We are very content. And what else could we want? We have everything that we want. So this is the mode of goodness that just shows you, but it never shows you out of this jungle. So this particular shloka reminded me of this, that we never want to get out of this jungle, and we always want to stay inside it. And we don't have this spiritual emergency like Hanuman had, when Hanuman was given when Lord Ram told Hanuman that because of you, Sugriv got his empire. I mean, Hanuman was more capable than Sugriv. And then he said, because of you, Vibhishan got his empire. Because of you, I got to be the king. So why? I mean, like, you could have also, got some this thing. You could have also become a king. So he said, when I have got, in Hindi they say no pad, like because Ramji said तुम्हें भी कुछ पद मिल सकता था. So Hanuman says मुझे तो ये, he looks at something and Ram has tears in his eyes, Lord Ram. He says मुझे ये दो पद मिल गए, अब मुझे और पद की क्या जरूरत. That means the pad he's talking about, pad seven, that pad, 2 feet. He's saying when I have got these this what is the pad of all the kingdoms and everything, because I've got the darshan, or I've got this 2 lotus feet. So thank you very much, Ati Sundari Mataji. Very nice class. Hari Bol. बहुत धन्यवाद माता जी. अब मैं साधु सेवन प्रभु को बुलाने का, उनके सुगुआजा और टिप्पणी के लिए. Hare Krishna, Prabhuji, Mataji. And thanks a lot, Vasant Prabhuji, for the beautiful Jayanilo Premdan. I agree with Tanvini Mataji. You, I mean, we have heard it many times, Prabhu, but the way you recite it, we can feel the, I mean, the suffering, at least a fraction of what Narottam Das Prabhu had for his like spiritual master and great acharyas. So thanks a lot, Prabhu. And Tanvin Mataji, thanks a lot. And I had picked you for my own self-interest only, Mataji. I was not able to log in. So you accepted the request and gave us the association. So thanks a lot, Mataji, for that. And Ati Sundari, yeah, she has prepared the nice and great points. And it was very simple session. I mean, never we found it very heavy, which is difficult to digest. So, and I could see she had prepared, I mean, she had spent like good time to prepare for that. So thanks a lot, Ati Sundari, for that. And the
one point which I liked most from the session was that meaning of Naraka. It is Nar plus Ka. It is made by human, by ourselves only. So, and it directly connects with the point where it was mentioned that the karmas that we are doing now, right now, while speaking, in India time 9:43 AM, 24 December 2021, the karmas that we are doing now are deciding the kind of the body that we will get in the next birth. So every single minute and every single second, like moment, is so important that it is directly connecting us there. So why not to use this opportunity when we have this knowledge and the blessings of Srila Prabhupada? We just need to have a little desire to serve them more, right? So if we look at the example of Ajamila, I'm sure, like at least when I heard this story for the first time, first thing that came in my mind is like, good that I know this information now. I will keep this in my mind, and when I grow old, when I am about to die, I will recite the name and follow Ajamila Prabhu. Very simple. I've got the trick now. But even if you forget that whatever we practice throughout the life, same thing we remember, if you forget that philosophy also, right, which is very much true, it cannot be ignored. But for a moment, even if we keep that thing aside, we just speak to ourselves, how far are we really from the situation of Ajamila? We have spent good and larger part of our life already. The kind of the world that we are living in, literally we never know when it is going to last, at least our life, right? So this is that moment of Ajamila where he recited Narayana. That moment for us is now. One second, Prabhu. So sorry, Babuji. So that moment of Ajamila is right now for us. And with the mercy of Prabhupada, I mean, we have to, again, as Ati Sundari told, we have to introspect and do inner net, right? We have to ask ourselves, we have lived that larger part of life, true. We have made at least so much with respect to even material things, that the kind of life that we all want to live, right? Our dream life that we all want to live can be easily managed, looking at the remaining probable size of the life left, can be easily managed with the so-called material opulence that we have created already. So how can we say ourselves we are very far from Ajamila? Because even he had his attachments towards his family, and he did not want to recite the name of the Lord, right? We are very much close to his situation. I mean, I don't know. Again, once as usual, I'm not able to explain, but I'm thinking. But the point herein is we should thank Ajamil Prabhu for teaching us through his example, and to Harinam Prabhu, because in whichever mode I'm saying for my own self-purification, when we are able to recite the name of the Lord, name is actually powerful. I mean, it is like, as we know, like it's like fire. Even if we don't know the impact of that, the name is doing its part. We just need to do our part only. We just need to have that delta faith, which will take us from the 80% to the
10%, right, who are fully convinced. So that point also I liked very much, that 10% are sure that they are not going to get impacted and they have no conviction. Top 10% are fully absorbed. They are Mahabhagat. And 80% are in between, dangling here. When they associate with the bottom 10%, they tend to become like them. When they associate with top 10%, they tend to behave, feel like that. So they are always moving, right, between 80%. So you have to just associate with top 10% and then pray the Lord, because only through their blessings only we can do it. Hare Krishna. Once again, sorry if I made it confusing as usual, and need your blessings to learn and serve. Hare Hare Krishna, Krishna. Prabhu. Bahut dhanyawad. Thanks for your comments, Prabhu. Hare Krishna. Mazi, very nice topic and a very simple one, but you connected like with so many nice examples, as well as like the internet and the internet was very apt thing. So I do remember His Holiness Radhanath Swami Maharaj mentioned, while don't get so much stressed like while the lockdown is there, because like during lockdown we can't go outside, but always no restriction on going inside, like so go inside when you're unable to go outside, like go inside and try to question and try to understand like what is the purpose of life, how can I do the devotion service. So very aptly like he mentioned, so that is to be remembered, and very apt also like today, because we sang the Jayanilo, how these Vaishnava acharyas struggled and dedicated their life for the benefit of like the compassionate of well-being of like all of others. So just one example I could able to remember where all the 6 Goswamis like they try to preserve Raghunatha Goswami and other Goswamis. Like it was not so easy to write the all the slokas and their transcriptions like in the that old leaf kind of like the transcript, because at the time there was no pen and paper, correct? So they literally they should not make any mistake. If they make mistake, like they need to rewrite, and it would not be very easy like as we write in paper and pencil. It would be very tough for them like to write one particular sloga, but still they struggled. And when I think like if not I'm wrong, like Raghunatha Goswami, while they were taking the all the transcript, like they found out it was theft by like that one of the king over there. So then the other I think Sanatana Goswami or Rupa Goswami, they started or Jiva Goswami, like any one of them, they are okay to start writing like a from starting from the scratch. So that is the level of compassion they had it for the future generations. So they literally dedicated their whole life, and how that has been like I mentioned. We always need to recollect, like I remember all these Vaishnava acharyas, a great dedication. So in today's purport also, like it was rightly mentioned, correct? Even Prahlad Maharaj also, he was saying that was one of the very good sloka, like it comes in 7.9.43, that translation only been mentioned. Naivot Vijay Paraduratya Vaitaranyas Twadvirya Gayana Mahamrida Magna Chitta Soche Tato Vimukta Chetasa Indriyartha Maya Sukaya Baram Udvahato Vimudan. So I am not at all worried about like crossing this material world, because Twadvirya Gayana Mahamrida Magna Chitta, because I am submerged into the glories of your Maha Amrita Magna Chitta. So I am completely submerged into your singing your glories. So I am not at all worried about like crossing this material world, but I am very much worried like soche tato vimukha chetasa. So I am worried about this material world and like this mudas, these fools and rascals who completely turned away. Vimukha, mukha means like a towards Lord. Vimukha means like a turn away from the Lord.
Vimukha Chetasa Indriyartha. Why they turned? Because they want to enjoy their material senses, like Indriyartha, Maya Sukhaya, in this material world. Baram, like that is very, very hefty. And Udvahato Vimudan, like because of this fools and rascals. So I'm just concerned about them. Like please grant them the blessings and mercy, Lord, like so that they can turn towards you and they can perform the devotion service. So that is the real determination and a real compassionate, like from all the Vaishnavas. So Vaishnavas are like called Paradukha Dukhis, like because he is never happy until like all the living beings are able to perform the devotion service. So that is the greatest quality of Vaishnava. You taken very aptly, Mataji, like mentioning like what is the Narakaloka and how we are controlled by this three mode of material senses, and how to come out from this Naraka and really to pave our way towards like the Goloka. Very nice, Mataji. Hare Krishna. Thanks again, like for choosing this wonderful topic and helping us to remember the Lord and His associates. Hare Krishna. Thank you, Bhajan Prabhu and Tanvini Mataji, for patiently listening our most fallen soul. So thank you. Yeah, thanks, Mataji. अब हम रिकॉर्डिंग तो विराम देते हैं और भक्तों को दर्शन के लिए स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल।